Good morning, students. How are you all? I hope you are enjoying the holidays. Lockdown holidays? Yes. In the previous session, we have seen some numericals based on the series and parallel combination. Yesterday, we have solved one numerical based on series and parallel combination. In this session also, we will take some numericals which are very important and very easy to solve. स्टूडेंट्स, ये जो पूरा टॉपिक है इतना इजी है कि आप अगर बेसिक कंसेप्ट को अगर क्लियर रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो ईजीली आप पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. एंड यू नो, फिजिक्स इज़ वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक इन द साइंस सब्जेक्ट. साइंस सब्जेक्ट जो है कंपोजिट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिजिक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. इफ़ योर बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर एंड यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉपरली. इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स है तो इट जस्ट लाइक सॉल्विंग अ मैथमेटिकल न्यूमरल्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. एंड यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाई सर इज़ नॉट गिवन अस होमवर्क टिल नाउ. अभी तक सर ने क्यों नहीं हमें कोई भी होमवर्क दिया है. सो डोंट वेट टू मच फॉर द होमवर्क. Today I'll give you some numericals based on the same series and parallel combination. We will go with the different varieties of questions, and I hope you will understand how to solve these numericals. See, this chapter having the maximum number of numericals. After this we have various chapters like light chapter. There also we have the numericals, but this is the very important chapter as far as your examination is concerned, or as far as your future is concerned, because some from you may become an engineer, electrical engineer or any other engineer. That time you will need these basic conceptions. If your foundation is strong, you can build a tower. Okay, a strong building, huge building you can build up. Okay, so let's begin. Today we have one numerical. See this, it's written on the board. If it is visible to you, you can see this. I am reading for you. That is, for the electric current given below, calculate what? First, current in each resistor. Second, the total current drawn from the battery. And the third one, equivalent resistance of the circuit. यानी ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है. 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं. दिस क्वेश्चन जनरली आस्क्ड फॉर द 3 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ओके, फर्स्ट, करंट इन ईच रजिस्टर. ध्यान रहे, करंट इन ईच रजिस्टर यानी हर रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है उसमें वो कैलकुलेट करना है आपको. सेकेंड, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और उसके बाद टोटल कितना करंट बैटरी से निकला ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. एंड द थर्ड वन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इक्विवेलेंट. ओके, सो दीज 3 आर द क्वेश्चंस. इफ इट्स विजिबल टू यू, यू कैन रीड इट अगेन. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Okay, this numerical. See student, to solve the numerical you must understand what is given and what the question is there, what they are asking. In this diagram, if you see the 3 resistors, this one, this, so just assign the name. This is R1, R2, and this one is R3. So we have assigned the name R1, R2, R3. 3 resistors are there. And see, this is connected in parallel. Okay, parallel. And current in each resistors, you have to find out the current. See, I reminded again and again, I said again and again that you must keep your basic concept clear. अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो इतना इजीली समझ में आ जाता है. जैसे देखो, चलो हम थोड़ा सा 1-2 वीडियो पीछे चलते हैं. ओके, एंड इन दैट वीडियो we have understand that if the resistors are connected in series, then what will be the current, and
if the resistors are connected in parallel, what will be the current? That we have seen. So just revise this. If okay, if the resistors are connected in series, these two are two resistors, अगर ये टू रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो इसमें से जाने वाला जो करंट होता है, अगर सपोज I1 है और ये I2 करंट है, ओके, द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू रेजिस्टर्स आर I1 एंड I2, देन टोटल करंट विल बी I1 इज इक्वल टू I2. समझ में आया? सीरीज में क्या होता है कि जब भी दो रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है तो सेम करंट दोनों रेजिस्टर से पास होगा. ओके, देयर इज नो डिफरेंस. बट व्हेन देयर इज रेजिस्टर्स, दो या उससे ज़्यादा, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टू रेजिस्टर्स इज I1 and I2, so that time total current will be I is equals to I1 plus I2. ओके, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट उस समय भी मैंने आपको बताया था जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे थे. ओके, वी लर्न दिस, सो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे ये जो न्यूमेरिकल्स है बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे. नाउ अब देखो, दीज टू आर द बेसिक कंसेप्ट्स. नाउ इन दिस न्यूमेरिकल क्या है, तीनों रेजिस्टर्स कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है. ऑल थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 2 3, इसमें कोई डाउट नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है द करंट फ्लोइंग थ्रू दीज थ्री रेजिस्टर्स, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स आर डिफरेंट. यानी इसका ये अगर हम I1 लेते हैं, I1 I2 I3, तो I1 अलग होगा, I2 अलग होगा, I3 अलग होगा. क्यों? बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते तो दैट टाइम द सिनेरियो इज डिफरेंट, बट राइट नाउ दे आर इन पैरेलल, दैट्स व्हाई द करंट विल बी डिफरेंट. सो नाउ फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस R1, देन R2 एंड R3. तो देखो, हमने दो चीज़ें समझी थी. ये न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, 5 मिनट भी ज़्यादा हो गया इसके लिए. 3 मिनट में ईजीली सॉल्व हो जाता है. बट इसका बेसिक बैकग्राउंड, उसके पीछे उसको क्या सॉल्व करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा समय दे रहे हैं. अभी मैंने देखा था, देखो मैंने आपको बताया कि इफ़ दे आर इन पैरेलल तो करंट कैसे होता है, पैरेलल में करंट पैरेलल में अलग अलग होगा और सीरीज में एक जैसा. ठीक है, मीन्स करंट के लिए जब हम बात करें, इफ रेजिस्टर्स आर in series, okay, if resistors are in series, that time I is equals to I2 is equals to I3 is equals to I1, like this. I is equals to I1 is equals to I2 is equals to I3. ठीक है, यानी सेम करंट होता है. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बोलेंगे हम, कि जब अगर वो तीनों सीरीज में है तो उस समय V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए. पैरेलल के लिए क्या है, इफ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. ओके, अब देखो सीरीज में क्या था, I is equals to I1 is equals to I2 is equals to I3. पैरेलल में क्या है, if they are in parallel, so that time I is equals to, करंट कैसे फ्लो होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3. डन. यहां पर I कांस्टेंट है, यहां पे सम ऑफ द करंट है ना, यहां पे करंट सेम, ये सम ऑफ द करंट. और V जब पैरेलल होता है तो तीनों के अक्रॉस V कांस्टेंट होता है. तो V का मतलब हियर V प्लस V1
इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बेटा आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर ली, अगर आपके ये बेसिक कंसेप्ट, मैं बार बार वो बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा आपको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। I इज इक्वल्स टू I1 I2 इज इक्वल्स टू I3 व्हेन दे आर इन सीरीज में है तो I कांस्टेंट, V सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर्स होंगे उसके सम, ठीक है, I कांस्टेंट V सम, और पैरेलल में जस्ट उसका अपोजिट, अब ये क्या हो जाएगा सम और V क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ओके, रिवाइज कर लिया आपने। सो नाउ अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सो हियर सबसे पहले चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। डन। सो फर्स्ट, जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का, सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, दैट इज given and what is given there, R1 is equals to 30 ohm। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जब आप ये वीडियो जब आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक कॉपी एक नोटबुक लेके साथ साथ जो चीज़ें बोर्ड पे हो रही है अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट भी करना है। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ, सो व्हाट यू कैन डू, यू नो हाउ टू राइट द गिवन। In the previous classes and the previous year also we have learned how to write the numerical, how to solve, what is the proper format, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले गिवन फिर देन टू फाइंड फार्मूला फिर सॉल्यूशन फिर आंसर, है ना, ये कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। तो जब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सो दैट वी कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। नाउ R1 नेक्स्ट क्या है, R2 इज 10 ohm, R3 is what, 5 ohm। तीनों गिवन है, और कुछ गिवन है क्या, रीड द क्वेश्चन। फॉर ऑल द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो, R1 R2 R3, one more thing is given, that is V is equals to 6 volt। Done। Then rest of the things we have to calculate। So now to find, okay, to find what, the current and the resistance। to find what, current I is equals to question mark and the total resistance is equals to question mark। These two things we have to find out। Now next is formula। तो फॉर्मूला सॉल्व करने के पहले देखो जहां पर भी ये इस तरीके की सब क्वेश्चंस होते हैं ना तो आप क्वेश्चंस वाइज ले सकते हैं। फर्स्ट करंट इन ईच रजिस्टर, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। करंट इन ईच रजिस्टर, ओके, सो लेट द करंट इन ईच रजिस्टर इज I1 I2 I3, I1 I2 एंड I3। तो अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला, यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग और बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था, क्या था ओम्स लॉ, हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ओके। और फिर हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये था, हमें I निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, R इस तरफ आ जाएगा, इज इट। सो I इज इक्वल्स टू, इट इज नथिंग बट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R। सो लेट फर्स्ट रेजिस्टर में से जो करंट पास होता है दैट इज I1 इज इक्वल्स टू V बाय R। डन।
So put the value. It is कितना है 30. So V is here given 6 by 30 1 by 5. It is equals to कितना है 1 by 5 कितना आएगा? टेल मी, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो. चलो 1 by 5 हाउ मच? कितना? जस्ट डिवाइड इट. 1 divided by 5. So 5 zeros are, है ना? So whatever कितना है जल्दी निकालो. ये आपके लिए होमवर्क है. जल्दी क्विक टिल आई रब द बोर्ड. ये न्यूमेरिकल्स, ये डायग्राम अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आई विल रब दिस बिकॉज आई हैव टू राइट दैट साइड. ओके, सो कैलकुलेट दिस. So calculated 1 by 5. It's so simple. It is 0.2 ampere I1. Yes, 0.2 ampere. Now similarly you can calculate for I2. It is again V by R. So V is how much? कितना है V? 6 और R2 कितना है 10. इसको R1 ले सकते हो बेटा. So write down V by R2. It is 6 by 10, है ना? 6 by 10. Okay, so it is equals to how much? 0.6. Similarly you can calculate for I3. V upon R3. It is कितना है R3? 5. So 5 by 6 by 5. It is 1.2 ampere. Done. Current through each resistor we have calculated. Current through first resistor is 0.2, current through second resistor is 0.6 and current through third resistor is 1.2. that we have calculated. Next question. Second question is there in the numerical. Calculate the total current drawn from the battery. So total current, here you can write total current drawn. देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि if the resistors are in parallel the total current will be what? Is it same or it is a sum? जल्दी. Yes, if they are in parallel total current will be I is equals to I1 plus I2 plus I3. So that is equals to कितना है 0.2 plus 0.6 plus 1.2. कितना हुआ total? It is 6 2 plus 6 8, 8 plus 2 10, 10 and carry 1, that is 2.0. So it is 2 ampere. The total current drawn is 2 ampere. Now the third question. And what is the third question? Third question says that the total resistance. The total resistance कैसे निकालेंगे हम? They are in parallel. So total resistance is equals to total resistance 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So it is 1 upon Rp is equals to कितना हो जाएगा? R1 R2 R3 कितना है 30 10 and 5. So 1 upon 30 plus 1 upon 10 plus 1 upon 5. Okay, so this is what? A rational number. ये क्या है? Rational number. So addition of rational number, you must know how to solve this. You can find out the LCM of all the denominators and then solve it. Okay, so now I am giving you 30 seconds, solve this. 1 upon 30 plus 1 upon 10 plus 1 upon 5. Quick, जल्दी बेटा, हाँ? Dear students, solve it fast. कितना आया? Quick.
1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5. आई सेड अर्लियर कि अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आप सेशन अटेंड करने के लिए बैठेंगे तो कॉपी पेंसिल आपके पास हमेशा होनी चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. जल्दी 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5, हाउ मच इट इज? क्विक, फास्ट. I'll wait. Do it fast. कितना हुआ? Solve it. Okay. Some students calculated it. I think it's 1/3. It's 1/, RP is 1/3. So RP is equals to 3/1, that is 3 ohm. 3 ohm is the answer. So after this you have to write the statement of answer. Okay. So student, we have solved this one numerical. See, sometimes it takes a longer time to solve the numericals, लेकिन वो समझाने के लिए इतना समय लगता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा. अगर आप फिर से इसको देखेंगे तो पहले हमने गिवन लिखा, उसके बाद डायरेक्टली करंट निकाला हमने यूजिंग ओम्स लॉ. V = V/R से, है ना. तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों रेजिस्टर्स में से हमने करंट निकाले और उसके बाद फिर टोटल करंट और रेजिस्टेंस. तो अगर हम 1 मिनट हर एक सब क्वेश्चंस के लिए लेते हैं तो 3 मिनट में ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इजी. उसमें इतना समय नहीं लगेगा. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. नाउ दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल वी हैव एंड इट इज गिवन. फाइंड द करंट इन फॉलोइंग. फाइंड द करंट in the following electric circuit. I think that is written something else. Find the current flowing through the following electric circuit. Okay, a electric circuit is given there and you have to find out the current. You have to find out. So easy it is. Through the following electric circuit. To find out the current, what you will need? Current find out करना है, that is I. For that, what you can do, you can find out the current through each resistors and then you can add, or in place of this, find out the total resistance and then after total resistance you can find out the current using Ohm's law. Okay, so total resistance पहले कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ये सिर्फ सीरीज में होता तो डायरेक्टली ऐड कर देते, सिर्फ पैरेलल में होता तो वो कर देते, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है ना. सो सिंपल इट इज. कभी भी इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना. यानी जैसे देखो, ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये इनके साथ सीरीज है लेकिन इसके साथ पैरेलल है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. इतना अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये फिर तीनों सीरीज में आ जाएंगे, है ना. तो पहले हम इन दोनों सीरीज को सॉल्व करेंगे. तो ये यहाँ पे RS आ गया, RS, और उस RS को 6 के साथ अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल निकल गया, है ना. तो लेट्स सॉल्व दिस. तो हम इसको नाम भी दे देते हैं. ओके, सो गिव द नेम. इट इज R1, हियर इट इज R2, R3 and R4 and this one is R5. Done. So here given solution. If I am out of frame, don't worry, my voice will be there. Okay, so solution. First, given, okay, given, that is R1 is equals to 3.6, R2 is equals to 1 ohm, R3 is equals to 3 ohm,
R4 is equals to, write down here, R4 is equals to 6 ohm and R5 is equals to 3 ohm. To find, what to find? I is equals to question mark. Formula. What formula you will write? First, Rs is equals to R1 plus R2 plus R3 dot dot and 1 upon Rp, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 dash 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 and V is equals to IR. These three formula you have to use. Okay, so now let's solve this. First, R2 and R3 are in series. So write down here R2 and R3 are in series. Therefore RS1 नाम दे देते हैं, RS1 is equals to 1 plus 3, that is 4 ohm. यहाँ पे कोई डाउट? अब देखो, अब हम इसको इसी में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो R1 R2 एंड R3 को हमने एक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और अब ये हो गया, दैट इज एक टोटल रेजिस्टेंस RS1 और जिसकी वैल्यू है 4 ओम. डन. अब देखो ये दोनों पैरेलल में है तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर ये भी एक रेजिस्टर आ जाएगा और फिर तीनों सीरीज. नाउ हियर R4 and RS1 are in parallel. Okay, so it will be 1 upon Rp is equals to 1 upon 6 plus 1 upon 4. कितना आया? 1 upon 6 plus 1 upon 4. What it will be? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो आप. ओके, सो इट इज 6 4 1 जा 4 प्लस 6 1 जा 6 24. इट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 24. सो Rp इज इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 24 अपॉन 10, दैट इज 2.4 ओहम. ठीक है, पहला हमारा ये Rs आया, फिर Rs के बाद हमने Rp निकाला. तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन हटके यहां पर ये एक रेजिस्टर बन जाएगा एंड इट विल बिकम लाइक दिस Rp. डन. क्लियर है यहां तक? नाउ R1, Rp and R5 are in series. Now R1, Rp and R5 are in series. Therefore Rs is equals to कितना आएगा? So here 3.6 plus 2.4, it is 6 plus 3 9, it is 9 ohm. You can directly I have written that directly you can solve it. That is 3.6 plus 2.4 plus 3, it is कितना है ये? 9 ohm. Rs, it is 9 ohm. डन. यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला? 9 ohm. नाउ V इज इक्वल्स टू IR, ये हमें पता है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? करंट. सो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? इसको जब हम चेंज करेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज V इज इक्वल्स टू IR. सो I इज इक्वल्स टू V बाय R.
तो V कितना है बेटा, इट इज 4.5 upon R is 9. Now divide it. I is equals to 45 upon 90. So I is equals to 0.5 ampere. After that you can write the answer. Current flowing through circuit is 0.5 ampere. Okay, so students just revise again. First हमने क्या किया, जितने भी सीरीज थे दोनों को सीरीज को ऐड करके 4 ओम निकाला, फिर उस सीरीज का 6 ओम के साथ पैरेलल था तो हमने निकाला आरपी दैट इज 2.4, फिर आरपी निकालने के बाद तीनों ऐड करके हमने उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला। कहने का मतलब ये कि जब भी आपको करंट फाइंड आउट करना है तो करंट के लिए आपके पास V होना चाहिए, R होना चाहिए, तो R निकालने के लिए हमने ये सब किया। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल based on this series and parallel combination. We will again take some more numericals, and the homework based on these two numericals you will get it today. Okay, thank you.